Hello, welcome to my channel, My Lord. This is Sanskruti. So, as I said, we'll be coming very soon with the first video. So, here I am. So, इस वीडियो को प्लीज एंड तक आप जरूर देखिए ताकि आपको आज का जो टॉपिक हमने जो लिया है, आज का जो कॉन्सेप्ट हम लेने वाले हैं वो आपको क्लियर हो जाए. सो प्लीज इसको एंड तक बने रहिए. इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को एंड प्लीज इसका जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफाई करता रहे. So the very first topic for the very first session we have considered that is strict liability under law of torts. So basically there are three types of liabilities under law of tort. The first is strict liability, and the second is absolute liability, and the third is vicarious liability. So we have taken the very first topic is strict liability. So what do you mean by the term liability under law of tort? So liability basically means who is responsible and who will pay the compensation. So basically this is a type of debt you are paying for your act. Okay, आप अपने act के लिए एक compensation pay कर रहे हो. So that is means liability. Basically that means who is responsible. So now the strict liability means where a person is held responsible for unforeseeable harm. Unforeseeable harm means ऐसा जो person अपने harm के लिए, अपने act के लिए liable है उसने कभी सोचा ही नहीं होगा. Despite having taken all the reasonable care to avoid foreseeable harm. उसने सारे possibilities लिए थे, उसने सारी care ली थी to avoid foreseeable harm. But even in spite of that वो harm होता है जिससे वो liable कहलाता है. ठीक है, so he'll be held liable for that act. उसको हम strict liability बोलते हैं. So now the strict liability, this rule has been recognized from where? Okay, so there is a famous case law, Rylance versus Fletcher. So basically the facts of this case is where the defendant has constructed a reservoir on his land through independent contractors. Okay, यहाँ पे जो defendant होता है उसने एक reservoir construct किया होता है अपने land पे through independent contractors. So basically reservoir means एक safe बोल सकते हो अपने पानी store करने के लिए to store the water. And also the tank, you can say टंकी बोल सकते हो जहाँ पे पानी स्टोर होता है. So now what happened is to construct that reservoir, the shafts or the pipe, you can say the pipe or the shafts that we used to build that reservoir were disused. Disused का मतलब होता है वो खराब थी या तो पुरानी थी. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस पे ध्यान नहीं दिया, सो दे डिडंट ब्लॉक देम. ओके, सो व्हाट हैपेंड इज when gradually the reservoir is filled with the water, वो जो shafts थी, the shafts has been burst, वो shafts टूट गई थी. ठीक है, जिससे हुआ ये जो पानी जो रिजर्वोयर में था वो पूरा निकल के प्लेंटिव या तो बोल सकते हो नेबर के लैंड में चला गया. Okay, so his land were full of coal mines. Okay, उसकी पूरी coal mines उससे flood हो चुकी थी. That coal mines were flooded with the water. यहाँ पे हुआ ऐसा जब वो flood हो चुका था, so the plaintiff has sued defendant for the compensation. So the court appealed that, the court held that the defendant was liable under strict liability. कैसी लायबिलिटी थी वो? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके प्रीमाइसेस में उसने ऐसी चीज रखी थी जो हार्मफुल थी, जो चीज दूसरों को हार्म कर सकती थी, दूसरों के लिए नुकसान बन सकती थी. उसने ऐसी चीज अपनी लैंड पे रखी. सेकेंड, वो चीज उसके कंट्रोल से बाहर गई. ओके, सो ही वॉज हेल्ड लायबल फॉर द होल एक्ट and the plaintiff can sue him for the same. He can recover the compensation from him. ठीक है. So now the rule that is recognized from this case is
if a person brings on his land and keeps there any dangerous thing, okay, so यहाँ पे जब कोई इंसान अपने लैंड पे कोई डेंजरस थिंग रखता है, ओके, और वो डेंजरस थिंग किसी और को नुकसान बन सकती है, किसी को इंजरी पहुंचा सकती है, किसी को हार्म कर सकती है, और वो चीज अगर उसके प्रीमाइसेस में से बाहर एस्केप कर जाती है, सो बेसिकली द मेन वर्ड हियर इज एस्केप, ठीक है। अगर वो चीज उसके लैंड में से एस्केप हो जाती है तो वो लायबल होगा अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है। नाउ टू held this strict liability, for the application of this strict liability there are three essentials. The first is dangerous thing. Dangerous things yani if the person is held liable if he is collecting or if he is keeping dangerous things on his land. For an example, you can say gas explosion, firecrackers, or noxious fumes you can say, or etc. ऐसी चीज जो उसके लैंड पे है जो किसी और को हार्म कर रही है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ डेंजरस थिंग। नाउ डेंजरस थिंग जब एस्केप कर जाती है, सो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? एस्केप फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑक्यूपायर। जब वो डेंजरस थिंग अपने डिफेंडेंट के मतलब मेरे अगर लैंड में से, मेरे कंट्रोल में से अगर वो बाहर हो जाती है, ओके, दैट इज आउट ऑफ माय कंट्रोल. Basically that thing goes from my control or from my premises. Even after taking all the reasonable care, I was not negligent. Even after that वो चीज escape हो जाती है, उसको वो essential को हम बोलेंगे escape from the premises of the occupier. So let's take an example. If मेरे घर में एक poisonous tree है, okay, जिसकी branches जो है वो मेरे नेबर्स के लैंड में जाती है, जिससे ड्यू टू व्हाट हैपेंड इज उसका जो कैटल है, ओके, वो जो ब्रांचेस है, ही कंज्यूम दोस ब्रांचेस ड्यू टू विच ही डाइड, ठीक है। अब यहाँ पे होगा ये, द प्लेंटिफ कैन स्यू मी फॉर द कंपेंसेशन बिकॉज मेरे प्रीमाइसेस में वो पॉइजनस ट्री था, मेरे प्रीमाइसेस में से वो ब्रांचेस गई उसके नेबर, उसके लैंड में पहुंची, ठीक है। सो बेसिकली ही कैन स्यू मी एंड आई विल बी लायबल फॉर द कंपेंसेशन. आई विल बी हेल्ड लायबल, आई नीड टू पे द कंपेंसेशन टू हिम. सो बेसिकली होता क्या है, अगर मेरे लैंड में से चीजें अगर मेरे कंट्रोल से बाहर जाती है, दैट इज गोइंग आउट ऑफ माई कंट्रोल, इवन आफ्टर टेकिंग ऑल द रीजनेबल केयर, आई वॉज नॉट नेग्लिजेंट टूवर्ड्स इट, बट स्टिल आई विल बी हेल्ड लायबल. सो नाउ द थर्ड इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड मीन्स ऐसी चीज जो नेचुरल नहीं है, ओके, दैट इज समथिंग वेरी अननेचुरल. जैसे मैं अगर कोई पॉइजनस स्नेक्स एज अ पेट रख रही हूँ, ओके, आई नो दोज स्नेक्स आर पॉइजनस एंड इवन आफ्टर टेकिंग ऑल द केयर दोज स्नेक्स विल बी एस्केप फ्रॉम माय प्रीमाइसेस, ओके, दैट विल बी कॉजिंग अ सीवियर इंजरी टू समवन, दैट कैन बी कॉज अ सीवियर हार्म टू समवन. तो इसके लिए वो चीज अगर मेरे लैंड से एस्केप हो जाती है, so that will be called a non-natural use of land. वो चीज मेरे इसमें से escape होनी चाहिए, ठीक है. तो that will be the three essentials. The first is dangerous thing, and the second is escape from the premises of the occupier, and the third is non-natural use of land. Now there are exceptions to this rules as well. Okay, exceptions means जहाँ person liable नहीं होगा. Okay, so there are 5 exceptions to this strict liability, to this rule, okay. So the 5 exceptions are: first is the plaintiff own default, second is act of God, the third is consent of the plaintiff, the fourth is act of stranger, that is third party, and the fifth one is statutory authority, okay. So now the first one is the plaintiff's own default. So basically the plaintiff's own default means the damage or the act that has been caused by the plaintiff himself has no remedy. Okay.
So now, for an example, we can take is I have a horse. My pet has been horse. वो pet जो horse है वो B के बाउंड्री पे चला जाता है और जो B के प्रीमाइसेस में, ओके, जो B के प्रीमाइसेस में एक पॉइजनस ट्री होता है वो मेरा हॉर्स कंज्यूम कर लेता है, ठीक है. नाउ ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ दैट पॉइजनस ट्री मेरे हॉर्स की डेथ हो जाती है. सो नाउ द डेथ दैट हैज बीन कॉज्ड टू माय हॉर्स, उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा. क्यों लायबल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई एस्केप नहीं हुआ है, उसके लैंड में से कुछ एस्केप नहीं हुआ है. ये मेरा ही हॉर्स, जो मेरा हॉर्स था वही उसके बाउंड्री पे गया और जो बाउंड्री पे जाके उसका जो पॉइजनस ट्री था वो मेरे हॉर्स ने कंज्यूम किया और उसकी डेथ हो गई. सो हियर I will be not liable to ask for the compensation from the defendant, and the defendant will be not liable here as there was not escape from his premises. उसके लैंड में से कुछ एस्केप नहीं हुआ था. Now, the second one is act of God. Act of God basically means the natural calamities. Okay, that has the act that is unforeseen of the supernatural forces. Okay, the act that has been caused due to unforeseen of the supernatural forces, and that act that does not have any human interference. Okay, ऐसा एक्ट जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है. सो नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर द एक्ट ऑफ गॉड. सो डिफेंडेंट का एक आर्टिफिशियल लेक बना हुआ था, ठीक है. आर्टिफिशियल लेक में उसमें पानी था. नाउ ड्यू टू विच एक्सेसिव फ्लड के, एक्सेसिव रेन के कारण, एक्सेसिव फ्लड के कारण जो आर्टिफिशियल लेक जो बना था, जो उसकी बाउंड्री थी वो टूट गई, ठीक है. उसकी जो बाउंड्री थी वो टूट गई, उससे बहुत बाहर आया. मतलब जो प्लेंटिफ था उसकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ. Now here the plaintiff cannot ask for the compensation because there was an act of God, that was a natural calamity that has been taken place. Okay, यहाँ पे कोई भी डिफेंडेंट की गलती नहीं थी, डिफेंडेंट की कोई नेग्लिजेंसी नहीं थी. देयर वाज नो नेग्लिजेंस टू कंस्ट्रक्ट एन आर्टिफिशियल लेक. बहुत अच्छे से बनाया था, बहुत रीजनेबल केयर लिए थे. बट नाउ ड्यू टू वेरी एक्सेसिव फ्लड, ड्यू टू एक्सेसिव रेन, वो जो आर्टिफिशियल लेक की जो बाउंड्री थी वो टूट गई और उससे बाहर आया, जिससे जो प्लेंटिफ की जो प्रॉपर्टी थी उसको बहुत नुकसान हुआ. बट when he sued him, the court held that he was not liable to pay you the compensation because there was a cause of act of God in the whole act. That was a natural calamity that has been taken place. Now, the third is consent of the plaintiff. ठीक है, यहाँ पे जब प्लेंटिफ कंसेंट दे देता है कि तुम, ठीक है, तुम इस लैंड पे कर सकते हो, तो बेसिकली मीन्स the damage that is common for both. Now let's take an example for the consent of the plaintiff as well. For an example, plaintiff ने ground floor पे घर लिया है, ठीक है. He has hired a ground floor in the apartment, and the defendant has taken the upper floor in the apartment. Now what happened is upper floor से पानी लीक होना शुरू कर देता है, ठीक है. डिफेंडेंट के घर से, डिफेंडेंट के फ्लोर से पानी लीक करना शुरू कर देता है, जहां प्लेंटिफ के जो गुड्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. प्लेंटिफ की कुछ चीजें रहती हैं वो जो डैमेज हो जाती है. नाउ हियर द डिफेंडेंट विल नॉट बी लायबल बिकॉज यहाँ पे जो पानी वहां पे ऊपर था वो बेनिफिट वो दोनों घर में आ रहा था. दैट वाज बेनिफिटेड फॉर बोथ डिफेंडेंट एज वेल एज प्लेंटिफ. तो अगर वो लीक हो रहा था तो यहाँ पे प्लेंटिफ की भी जिम्मेदारी थी कि वो जो जहां से पानी लीक हो रहा है वो उसको आप ठीक करा दीजिए, ठीक है. तो यहाँ पे डिफेंडेंट के साथ साथ प्लेंटिफ भी उतना ही यहाँ पे लायबल होता है. सो प्लेंटिफ कैन नॉट आस्क फॉर द कंपेंसेशन. नाउ द fourth one is act of stranger, that is third party.
So now the case that we have taken is Ryland versus Fletcher. अगर इसमें यहाँ पे हुआ ये था कि जो शाफ्ट्स और जो पाइप्स जो यूज की गई थी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू वो खराब थी और वो पुरानी थी, ठीक है। बट अगर ये शाफ्ट्स और ये जो पाइप्स यूज की गई थी, समझ लो अगर कोई तीसरा इंसान आके, ठीक है, इसको तोड़ देता है, ठीक है, दैट इज एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे अगर कोई तीसरा बंदा आके वो जो यूज किए गए थे जो शाफ्ट्स और जो पाइप्स थी अगर वो तोड़ देता है, तो यहाँ पे वो प्लेंटिव वाज नॉट लायबल बिकॉज देयर वाज अ एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। किसी थर्ड पार्टी के हिसाब से वो चीजें टूट गई थी और उसकी वजह से वो पानी बाहर आके नेबर के लैंड में चला गया था। सो एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर इज द थर्ड पार्टी मीन्स किसी थर्ड पार्टी का होना जरूरी है, वो पूरे एक्ट में तब जाके डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी। सो व्हाट डू वी मीन बाय स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी? फर्स्ट, the statutory authority that has been taken directly from the legislature. Okay, now if the person who has been under the statutory authority and that person has caused some harm to another, but the reason that he has this authority, he cannot be held liable for the harm that he has caused. Okay, statutory authority means statute. Statute means act. एक्ट जो कुछ किया जाता है डायरेक्ट, जो लेजिस्लेचर के थ्रू स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी एक दी जाती है, मींस एक गवर्नमेंट ऑथोरिटी। ओके, बेसिकली चलो वी विल टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है पानी सब घरों में पहुंचाना। नाउ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पानी जो स्टोर किया गया था, ड्यू टू सम रीजन वो बाहर वो टूट गया, उसका जो बाउंड्री था वो टूट गया और वो पानी बाहर आ गया, ड्यू टू विच प्लेंटिव और उसके साथ साथ बाकी दूसरे घरों को वो पानी से डैमेज हुआ, उससे वो फ्लड, उससे वो पानी भर चुका था उनके घर में। बट नाउ ड्यू टू रीजन दे हैव स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव दिस ऑथोरिटी दैट द गवर्नमेंट ऑथोरिटी दे हैव, सो प्लेंटिव एंड दोज सेवरल हाउसेस cannot ask for the compensation from the municipal corporation. Why? Because they have this authority they have this government authority they have. Okay. So now with this we have drawbacks also of the strict liability. ठीक है, इसका जो ड्रॉबैक है, एक एग्जाम्पल, एक जो केस है ये है रीड वर्सेस जे। तो यहाँ पे हुआ क्या था? द डिफेंडेंट to control of the management of an factory where highly explosive shells for the government were made. An explosion inside the factory caused damage to the plaintiff and others. Now यहाँ पे जो ड्रॉबैक जो है, यहाँ पे हुआ ये था, जो डिफेंडेंट है एक फैक्ट्री में हाईली एक्सप्लोसिव क्रैकर्स बन रहे थे, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ओके, नाउ ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजंस के वजह से वो क्रैकर्स बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। उससे इनसाइड द फैक्ट्रीज, मतलब जो क्रैकर्स थे वो बर्स्ट हो जाते हैं इनसाइड द फैक्ट्रीज। ओके, नाउ उसके वजह से जो प्लेंटिव वो जो दूसरे हैं उन पर डैमेज हो जाता है। नाउ द थिंग इज प्लेंटिव कैनॉट आस्क फॉर द कंपेंसेशन। व्हाई? बिकॉज जो क्रैकर्स थे वो फैक्ट्री के अंदर बर्स्ट हुए, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। वो रीजन चाहे कुछ भी हो, बट वो जो क्रैकर्स थे वो बन रहे थे गवर्नमेंट के लिए, और दूसरी चीज वो बर्स्ट हो गए थे फैक्ट्री के अंदर। सो नाउ यहाँ पे प्लेंटिव कैनॉट आस्क फॉर द कंपेंसेशन। ड्रॉबैक इसका ये है, मतलब कई बार चीजें गलत हो जाती है डिफेंडेंट से, बट उसमें भी प्लेंटिव उनको मतलब प्लेंटिव डिफेंडेंट उसमें लायबल नहीं होता है। इसका ड्रॉबैक एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ये है। नाउ इसके बाद एक टॉपिक आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी विल बी टेकन इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। तो यस, टुडे वाज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसका क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं।
Strict liability means when a person is held responsible for unforeseeable harm despite having taken all the reasonable care to avoid foreseeable harm. कोई इंसान जब ऐसे हार्म के लिए लायबल होता है जिसने कभी वो सोचा नहीं होगा, डिस्पाइट टेकिंग ऑल द मेजरेबल केयर, उसने सारे केयर्स लिए थे, उसके बाद वो फोर्सिबल हार्म अवॉइड करने के लिए स्टिल वो एक्ट उससे हो जाता है, तो वहां पे उसकी लायबिलिटी हो जाती है। इसका एक फेमस केस लॉ हमने देखा, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर। राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में होता ये है कि डिफेंडेंट ने एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट किया था उस केस में। तो रिजर्वॉयर में जो शैफ्ट्स और जो पाइप्स यूज की गई थी वो बहुत पुरानी थी, जिसकी वजह से वो जो पानी जो रिजर्वॉयर में भरता गया उससे वो जो शैफ्ट्स थी वो बर्स्ट हो गई, और वो जो पानी था वो नेबर्स के लैंड में चला गया, जिससे उसकी जो कोल माइंस थी वो खराब हो गई। तो यहाँ पे he was held liable, the defendant was held liable under strict liability. So now the rule that has been recognized under Rylance versus Fletcher is if a person bring on his land and gives there any dangerous thing, okay? तो किसी कोई इंसान अगर अपने लैंड पे डेंजरस थिंग लाता है, ऐसी चीज जो बहुत हार्मफुल है दूसरों के लिए, और वो चीज उससे उस लैंड से एस्केप हो जाती है, तो दैट विल बी अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, now the application for the strict liability we need 3 essentials. Okay, so the 3 essential is dangerous thing, second is escape from the premises of the occupier and the non natural use of land. इसके एसेंशियल इसको अप्लाई करने के लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में फर्स्ट चीज आपकी क्या होनी चाहिए, आपके लैंड पे एक डेंजरस थिंग होनी चाहिए। ठीक है, और वो डेंजरस थिंग आपके प्रीमाइसिस से एस्केप होनी चाहिए। और थर्ड है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, आपके लैंड से कोई नेचुरल यूज नहीं होना चाहिए, कोई नॉन नेचुरल होना चाहिए जिससे दूसरों को हार्म होता है, तभी आप लायबल होंगे अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज इसके एक्सेप्शंस हमने पढ़े। फर्स्ट इज प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट। प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट में यहाँ पे प्लेंटिव की खुद की एक गलती होनी चाहिए जहाँ फिर उसमें डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। सेकेंड इज एक्ट ऑफ गॉड, ऐसे एक्ट में जहाँ नेचुरल कैलेमिटीज इंटरफेयर करती है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। थर्ड इज कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव, एक ही डैमेज के लिए जो डैमेज होता है उसमें प्लेंटिव का भी कंसेंट होता है डिफेंडेंट के साथ। नाउ द फोर्थ इज एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी, यहाँ पे डिफेंडेंट नहीं और ना ही प्लेंटिव होता है, ये एक्ट थर्ड पार्टी के बेसिस पे हुआ जाता है। फिफ्थ इज स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी, ऐसी चीज जहाँ पे प्लेंटिव लायबल नहीं होता है कंपेंसेशन मांगने के लिए, बिकॉज वो फैक्ट्री के पास वो इसके पास स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी होती है, दैट मीन्स अ गवर्नमेंट ऑथोरिटी। तो बेसिकली नाउ हमने जो ड्रॉबैक्स पढ़ा, ड्रॉबैक्स इसका लायबिलिटी का ये है, हमने रीड वर्सेस जे केस लॉ पढ़ा। यहाँ पे द डिफेंडेंट टू कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन फैक्ट्री, यहाँ पे चीज होती ये है, एक फैक्ट्री होती है जिसमें क्रैकर्स बनते हैं, और वो क्रैकर्स बनते हैं गवर्नमेंट के लिए। दे वर मेड एन एक्सप्लोजन इनसाइड द फैक्ट्री, वो जो क्रैकर्स होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर बर्स्ट हो जाते हैं, जहां से जिससे प्लेंटिव को डैमेज हो जाता है। बट नाउ द प्लेंटिव इज नॉट लायबल टू आस्क द कंपेंसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट, बिकॉज उनके पास मतलब जो क्रैकर्स थे वो जो बना रहे थे वो इनसाइड द फैक्ट्री बर्स्ट हुए थे, जिसके वजह से प्लेंटिव को डैमेज हुआ था। इसका ड्रॉबैक ये है, कई बार मतलब कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे प्लेंटिव मतलब डिफेंडेंट की गलती होने के बावजूद वो लायबल नहीं होता है। सो फॉर द टुडेज टॉपिक वी हैव टेकन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इसका जो नेक्स्ट ये रहेगा वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी रहेगा, जो सेकंड टॉपिक हम लेके आएंगे वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी रहेगा। ये हम सेकंड वीडियो में, हम जो दूसरा वीडियो रहेगा ये इसमें जरूर आएगा। एंड आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आई होप आप ये वीडियो को एंजॉय आपने किया होगा ये वीडियो को। एंड प्लीज हमारा दूसरे वीडियो तक आप वेट कीजिए, एंड ढेर सारा इस वीडियो का प्यार दीजिए, एंड या थैंक यू।